So, hi guys, as promised, we have Anand Chaudhary with us in the second episode of the Knowledge Cafe series. So, hi Anand, how are you doing? I'm fine. Thank you for giving me the opportunity and inviting me in the second session. My pleasure. So, as you have seen the first episode with Aditya Goyal, our audit manager, so my questions will be straight and direct. We are not going to hit around the bush like आपको जो बाकी पूछते हैं कि आपने पढ़ाई कैसे की, आपका वो क्या होगा. So, I'll just keep it short and to the point questions. So, my first question would be, you scored a rank in the inter exams as well, right? So, आप मेरे को ये बताओ कि इंटर का रैंक का पढ़ाई के लिए how much time was needed, and is it possible for, like, I get many questions that, well, is it possible in 3 months, is it possible in 5 months? So is it about time or is it about the level of study that you do? It is not like definitely not about the time, because I gave my CA intermediate examinations in the first attempt that I had. Because both are like there are many people who skip an attempt to get a rank. But I Right. got it in that attempt itself. So it is about how much you focus on your studies, as well as how much you solve your mock test papers as well as the RTPs. And one thing that really helped me is that since I had taken those tuitions in those 6 months only, I remembered all the concepts very well. Like it was more, like I could even recall like what the teachers were saying when I was writing the examinations. Because obviously you're just like you've gone through all the studies and giving the examinations. So like Right. अभी एकदम तुरंत तुरंत ताजा ताजा याद रहता है. हाँ, तो मेरे को कितने इनबॉक्स क्वेश्चंस आते हैं कि शुड वी स्किप दी अटेम्प्ट, अपने को 6 मंथ्स के बाद देना है कि नहीं देना है. तो व्हाट डू यू सजेस्ट? 6 मंथ्स मेरे हिसाब से वी शुड नॉट स्किप, राइट? व्हाट इज योर व्यू ऑन इट? नो, इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन. ऐसा नहीं होता कि सबको स्किप करना चाहिए, नहीं स्किप करना चाहिए. अगर आपका प्रिपरेशन एडिक्वेट है, अगर आपको लगता है कि ठीक है, तो आप उसी टर्म में दे दो. लेकिन अगर आपको लगता है नहीं मेरा एडिक्वेट नहीं है, आई हैव टू फोकस मोर, आई हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट, आई एम हार्ड, मतलब एक बार मुझे कॉन्सेप्ट ग्रैब नहीं होते तो मुझको बार बार हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में देना. एग्जैक्टली इट मतलब ये नहीं कि मेरे डिपेंड्स को ऑन पर्सन टू पर्सन. पर्सन टू पर्सन कि मेरे को रैंक चाहिए तो मेरा पढ़ाई हो चुका है बट मैं 6 मंथ्स रेफर करता हूँ कि मेरे को रैंक आ जाए, वो गलत है. आपके कोई पर्सनल प्रॉब्लम्स हो गई, आपका कोई, अगर इफ यू आर नॉट, एज यू सेड, इफ यू आर नॉट एबल टू ग्रैब द थिंग्स, तब आप डेफर करो, देन इट मेक्स सेंस. ट्रू ट्रू. सो द सेकंड क्वेश्चन, सो नेक्स्ट लेवल इन योर लाइफ, तो इंटर में रैंक आ गया, then you get into Big Four articleship. You spent relentlessly 2.5 years working and slogging day in and day out, and then managing your studies. So tell me about that. That how did you manage your tuitions? How did you manage your articleship period and the traveling that you did? And how did you get a sync between the two? So basically, I did my articleship from a Big Four. I won't give the name. So Sure. like पहला like whenever you join a Big Four, कोई भी articleship firm, पहला 6 months आपको कोई भी पढ़ाई नहीं करना पड़ता है. like आपको मन नहीं करेगा पढ़ाई करने के लिए. अभी आप एग्जाम्स क्लियर करके आए हो, आपको भी एंजॉय करना है वो articleship का हनीमून पीरियड जो बोलते हैं. तो obviously True. फर्स्ट 6 months में उतना like पढ़ाई मैंने नहीं किया था. I just took one tuition and वो भी मुझको खत्म करते करते 9 months लग गया था with the work that I had. बिकॉज लाइक ऑब्वियसली फर्स्ट ईयर में आप लर्न करने जा रहे हो थिंग्स, आपको क्या करना है नहीं करना है. सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स आप सोच सकते हो क्योंकि आपको मोटा मोटी काम आ जाएगा. मेरे पास आई ओनली हैड वन एम फ्रॉम द स्टार्टिंग दैट आई वांटेड टू फिनिश ऑल माय ट्यूशंस बिफोर माय स्टडी लीव. Because during the study leave that I will get in my articleship period, I just wanted to go for revisions. So which is why I completed all the tuitions approximately 3 or 4 months before my study leave. Okay. Approximately in December 20 or January 21. That was the time period when I had finished all my studies. And obviously, because of this lockdown, it really helped me a lot. Otherwise, traveling तो like 3 years में तो difficult हो जाता True. करने के लिए. So अगर किसी को भी like आर्टिकलशिप में like कैसे स्टडीज करना है नहीं करना है, तो लाइक दे शुड नॉट थिंक कि मैं सब स्टडी लीव के टाइम पे करूंगा. वहाँ फर्स्ट ईयर में कुछ नहीं करना है, सेकेंड ईयर में कुछ नहीं करना है. आपको पेस बना के चलना पड़ेगा. ऐसा नहीं कि आप फर्स्ट ईयर में कुछ ट्यूशन मत करो, फिर फर्स्ट ईयर में सब ट्यूशन कर लो. आपको अकॉर्डिंगली सिलेक्ट करना पड़ेगा वो रेलेवेंट सब्जेक्ट जिसमें अमेंडमेंट्स नहीं आती है, वो आप इसको Correct. आगे कर लो.
एंड पर्टिकुलरली दो सब्जेक्ट जिसमें अमेंडमेंट्स धीरे धीरे आती रहती है, आप उसको बाद बाद में करते रहो। ऐसा भी राइट। मत करना कि आप अपने फर्स्ट ट्यूशन ले लिया उसके आप 6 मंथ्स का गैप लेके सेकंड ट्यूशन ले रहे हो, बिकॉज 6 मंथ्स अगर फर्स्ट ट्यूशन बिता दोगे दैट विल बी डिफिकल्ट। मेरा यही था कि ट्यूशन खत्म करो देन गो फॉर सेल्फ रिविजन, बिकॉज सेल्फ रिविजन इज व्हाट मेक्स यू परफेक्ट। राइट। अब सब स्टूडेंट के साथ डिफरेंट हो सकता है, तो माई सजेशन वुड बी आप ट्यूशंस ले लो, ट्यूशंस एज फास्ट एज जितना हो सके आप खत्म कर लो, एंड देन लाइक विद इन बिफोर द स्टडी लीव आप ट्यूशन खत्म हो जाएगा तो आप स्टडी लीव में बस रिविजन ही करोगे आप। दिस इज व्हाट आई सजेस्ट। राइट। तो लाइक जैसे मैंने अपने, भी यही अप्रोच लेके किया था। जैसे हम लोग भी जब व्हेन वी यूज्ड टू स्टडी अपने पहले सपोज एसएफएम, कोई कोई आपको उसमें अमेंडमेंट्स नहीं आने वाले, डू इट, डस्ट इट विद इन 3-4 months एंड यू आर डन विद इट। फिर आपको रिवाइज करना करो, देन द सेकंड लेग कम्स एज अकाउंट्स। तो वैसे यू हैव टू प्लान आउट, एंड ऑब्वियसली जैसे अमेंडमेंट्स हो गए आपके टैक्स में आ गए, फिर थोड़ा सा लॉ में आ गया, तो वो आपको लेटर स्टेजेस में प्लान करना है। सो दैट इज व्हाट आई कीप सजेस्टिंग टू द स्टूडेंट्स दैट राइट टू मी. So yeah, thank you Anand for throwing some insights on that. And the next question, which is again endless, that comes to me is rank really important in life? For example, there are around कितने students देते हैं, 1 lakh students देते होंगे if we take a minimum number, and rank होते हैं 50. एक rank में suppose 2 आदमी हो, चलो 100 rank आ गए, so 9,99,900 people are not getting rank for hypothetical basis. So is rank such an important thing for everyone? And if people don't get it, they get depressed, they get very demotivated कि अब यार तो लाइफ में कुछ नहीं हो सकता. So throw an insight on that. You have seen friends that have not got rank. You have got a rank. So tell me about the life and what is the difference apart from the monetary aspect. Yes, for rank, for considering ranks in CA final, rank will just provide an edge. मतलब आपको बस एज प्रोवाइड कर देगा बाकी सब कैंडिडेट्स की, आपका नाम शॉर्टलिस्ट होगा ही होगा कंपनी में, लेकिन इट इज नॉट नेसेसरी कि बिकॉज ऑफ द रैंक यू विल श्योरली गेट अ जॉब इन अ नाइस कंपनी. That I have also faced. You have to go through the rigorous GDPI and you have to prove yourself like you are worthy a candidate in order to be eligible for that job. So ये necessary नहीं है कि आपको रैंक लाना ही लाना है. अगर रैंक आ जाता है तो एडिट एडवांटेज रहता है, लेकिन आपका टेक्निकल स्किल्स कितना स्ट्रांग है, आपका आर्टिकलशिप एक्सपोजर कितना अच्छा है, आप कितने अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हो, दैट इज व्हाट द कंपनीज एंड द पीपल आर लुकिंग एट. भले आपका रैंक नहीं, लेकिन अगर आप आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस अपना बता सकते हो कि आपने अच्छे से काम किया है, आपने जो सीए में आर्ट सब्जेक्ट है उसका पूरा टेक्निकल नॉलेज है आपके पास, तो श्योर शॉट भले ही आपका रैंक नहीं हो लेकिन आपको अपने ड्रीम कंपनी में जॉब मिल सकता है. दिस इज फॉर सीए फाइनल. बट फॉर सीए इंटर आई विल सजेस्ट रैंक विल बी इंपॉर्टेंट बिकॉज बिग फोर्स सिर्फ रैंकर्स को लेते हैं, नॉन रैंकर्स को नहीं लेते. एंड इफ यू गेट अ रैंक इन सीए इंटर इट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन सीए फाइनल इवन विदाउट गेटिंग अ रैंक. बिकॉज आपके पास एक बार बिग फोर का टैग लग जाता है, तो व्हेन यू गो टू अनदर कंपनी ऑफ योर ड्रीम कंपनी, आपको जहां पे जाना है, तो बिग फोर विल हैव एन एडेड एडवांटेज एंड द वर्क एक्सपोजर दैट विल गेट दैट विल श्योरली हेल्प यू. सीए इंटर यस आई विल प्रेफर फॉर अ रैंक, बट सीए फाइनल नो. Okay. So just to simplify what Anand said, let's just divide it in 2 branches. Suppose you are an inter student, right? You get a rank. आप उस ब्रांच में आ जाओगे, there where big fours will automatically accept you. आपका उससे क्या होगा कि यू विल गेट अ गुड एक्सपोजर एंड देन आपको फाइनल वैसे आपको प्लान आउट करना है. अनदर ब्रांच विच इन माय फर्स्ट एपिसोड एज बी एंड आदित्य हैड मेंशन्ड, it's not really important about if you don't get rank. Again, out of 1 lakh students only 100 get, 99,000 people don't get it, right? So उसमें आपको आता है कि you also again the firm may be different, the name is different, big four हो या mid size level, आपको काम सीखना पड़ेगा. It's not that it's going to be a cakewalk in big four कि आपको big four आ गया तो आपको ऑटोमेटिक काम आ जाएगा. आई एम राइट Anand, isn't it? कि बिग फोर में आगे तो काम आपको आता है, आपको वहां पे भी स्लॉक करना है, आपको यहाँ पे भी स्लॉक करना है. देन इट कम्स डाउन टू सीए फाइनल वेदर यू गेट अ रैंक और डोंट गेट अ रैंक. इफ यू गेट अ रैंक, योर फाइनेंशियल फर्स्ट जॉब एस्पेक्ट वाइज एंड द लेवल ऑफ कंपनी दैट यू गेट इज अ बिट मोर बेटर. बट अगेन आपको वो क्रैक करना पड़ेगा, आपको वो प्रूव करना पड़ेगा दैट यू आर वर्दी फॉर इट. एंड अगेन आई कीप ऑन सेइंग दिस टू एवरीवन कि आर्टिकलशिप में इट्स नॉट जस्ट अबाउट द वर्क दैट यू लर्न. एज आनंद सेड, you have to learn about how to discuss, how to interact with people. You have to have certain edge over the other the students, that why should the company select you. You should know things beyond your work. I'm sure Anand, आपको भी इंटरव्यू में लोग सिर्फ काम को रिलेटेड नहीं पूछते होंगे. The usual question is tell me something about yourself outside what you have written in the CV, right? So वो सब questions में I have seen most of the candidates say nothing. They कि I play cricket, I play football, I play tennis, and that's it. They don't know beyond something, and then that's the edge. There they get rejected.
So you have to, have something beyond the work which you have to develop in these 3 years. Right. So, Anand, my last question for you would be, since this video, I think I'll be putting it out before the May exams. So last 1 month, right? So anyway, anytime whenever you watch these videos, just make sure that you implement this in whichever term that you have, right? So Anand, it's the last 1 month or maybe say last 25 days. आप अपना एक व्यू बताओ कि अगर लास्ट के 25 दिन पड़े हैं, आप सीए फाइनल दे रहे हो या सीए इंटर दे रहे हो, दोनों जवाब देना मेरे को। लास्ट के 25 दिन है और आप दोनों ग्रुप दे रहे हो, आपका क्या अप्रोच रहेगा फॉर पासिंग आउट एंड फॉर अ रैंक, whatever your approach will be. Just give me a brief idea about it. So I'll segregate the 25 days into two parts: the first 20 days Okay. and the last 5 days. Okay. The last 5 days obviously will be for the first subject, that is accounts, either for CA final or for CA inter. Because the first paper is very important. अगर आपको फर्स्ट पेपर अच्छा नहीं जाएगा, कॉन्फिडेंस, मोरल, सब चीज डाउन हो जाएगा. लास्ट 5 डेज मान लिया. रेस्ट जो फर्स्ट 20 डेज है, व्हाट आई फोकस इज ऑन, आप कुछ भी नया चीज मत पढ़ो. आपने जो अपने स्टडी लीव में जो भी लीव आपको मिला है, आपने जो भी पढ़ा है वो ही पढ़ो, कुछ नया में मत जाओ. बिकॉज आप नया में जाओगे, आप पैनिक करोगे, आपका टाइम लॉस हो जाएगा. बिकॉज 20 डेज आपको पूरा प्लान आउट करना पड़ेगा. And make sure कि मेरा जो भी subjects आ रहे हैं, I at least have done a revision of those in those 20 days. Because obviously, like CA final का syllabus is huge, you cannot remember each and everything. आप जितना वो 20 days में revision करोगे, उतना ही 1.5 days में ही revision कर पाओगे. साथ आप revision नहीं कर पाओगे, and उतना ही exam में आप लिख पाओगे. तो my suggestion will be, आप 20 days बस revision करो आपने जो पढ़ा है, नया stuff में मत जाओ. And like what I will suggest is handwritten notes. Please रख के रखना, because that is what will help you in those 1.5 days as well as in this 20 days. So just focus on revision and solving of MTPs and RTPs. Nothing else. Right. I was waiting for the last moment कि अगर आपका पढ़ाई हो ना हो, MTPs and RTPs of the institute or whatever tuition teachers, we are not preferring tuition teachers, we are not giving certain names कि आप इससे tuition लो. आपने जो पढ़ाई की है वो करो, and last में MTPs and RTPs, short आपको वो करना ही है. If you want to successfully and dedicatedly clear your exams, isn't it? Right. Okay. One more thing, like MTPs and RTPs are very important, not only for your term, but as well as for the previous term. What many students have like done wrong things, what I've seen also, is like tuitions तो वो ले लेते हैं, उनको लगता है मैंने अब tuitions ले लिया, मुझे अब कुछ भी MTP RTP चेक नहीं करना है, बस वो बुक लेके हो जाएगा. हाँ, वो क्वेश्चंस तो कवर हो ही गए. हाँ, तो वो कुछ करना है नहीं, कवर तो हो ही गया, छोड़ो, कौन करेगा. हाँ, लेकिन आपको ऐसे करने से नहीं होगा कि आपको बुक मिल गया. आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा. आपने भले ट्यूशन 2 साल पहले लिया होगा, लेकिन 2 साल का एमटीपीज एंड आरटीपीज आपको चेक करना पड़ेगा. बिकॉज मोरल सिमिलर टाइप के क्वेश्चन ही आते हैं एग्जाम्स में. राइट. तो आपको अपडेट करना पड़ेगा अपने आप को. Perfect. So I guess in this short span of time, Anand has given a lot of insights on how rankers study, and how you can help and improve yourself in your CA study exams, and also the life beyond your finals. So Anand, all the very best. I know you are undergoing something, and we'll discuss this sometime later in another video. So we promise we'll try to get Anand back once he's free from his certain duties that he has to perform. Right. So Anand, any closing remarks from your side? Like I'll just suggest, like in 20 days, अब भले आपका मई में हो या फिर नवंबर 22 में हो, आप फोकस्ड रहो. Like basically क्या होता है, इतना लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम है ना, तो पीपल लूज देयर मोटिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो आई सजेस्ट मोटिवेशनल वीडियोस चेक करो, एंड प्लीज स्टे कॉन्फिडेंट एंड मेक अ टाइम टेबल एज टू क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है. पैनिक में मत करो. हाँ, इट मे बी पॉसिबल कि आप टाइम टेबल बना रहे हो, फॉलो नहीं हो रहे, चेंजेस करो. ह्यूमन होता है, आप ह्यूमन हो, आप पूरा एकदम क्लियर नहीं कर पाओगे टाइम टेबल. लेकिन प्लीज ये 20 डेज हो या फिर नेक्स्ट 6 मंथ्स हो, आप डेडिकेटेडली पढ़ाई करो. यस, एंटरटेनमेंट भी करो. ये नहीं कि रूम में बैठ के आप 24 घंटे बैठ के पढ़ते रहो. 20 मिनट 25 मिनट का ब्रेक ले लो, बट हाँ, उसको सिंक में पढ़ना पड़ेगा, उसको फ्लो में पढ़ना पड़ेगा. ये नहीं कि 12-13 घंटे पढ़े और फिर 2 दिन पूरा कुछ किया ही नहीं. चलो, क्योंकि ये जो टाइम है ये वापस नहीं आएगा लाइफ का. ये लास्ट ही टाइम है स्टडी का. वाह, व्हाट ग्रेट वर्ड्स फ्रॉम आनंद. बहुत बोलते हैं ना, एकदम भव्य ज्ञान दे दिया तुम तो लास्ट में सबको. एनीवेज, थैंक यू आनंद, थैंक यू वंस अगेन. And yes, stay tuned. Please like, share, and subscribe if you like this video. Anand will be there with us. If there is any questions you want to ask him, write it down in the comment box. I'll try to answer them. Anand will try to answer them. And let's wait for the 3rd episode. Till then, keep studying, keep going professionally, and subscribe to